محترم شعراء کرام، پرستاران اردو ادب کے حوالے سے شہر کی اور بیرون شہر کی بہت معتبر شخصیات یہاں موجود ہیں اور سب اپنے آپ میں کہکشاں کی مانند اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں اور اپنی چمک بکھیر رہے ہیں اردو زبان کے حوالے سے۔ ان اہم شخصیات کو یہاں جمع کر کے ایک شعری نشست منعقد کرنے کا جو عزم شہر بنارس کے ایک اہم شاعر، ادب نواز اور بنارس کی سرزمین پر اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنے اشعار کے ذریعے سے تیرا شبی میں سارے اجالوں کی خیر ہو، تحریک کے تمام حوالوں کی خیر تیرا شبی میں سارے اجالوں کی خیر ہو، تحریک کے تمام حوالوں کی خیر ہو، اے دشت دل کے تیرے غزالوں کی خیر ہو، دشت دل کے تیرے غزالوں کی خیر ہو، میرے تمام چاہنے والوں کی خیر ہو۔ خود پر گمان تجھ سے امیدیں جہاں سے آس، خود پر گمان تجھ سے امیدیں جہاں سے آس، دل دیس کے تمام نگالوں کی خیر ہو۔ اے قوت جواب تحمل کا شکریہ، اے قوت جواب تحمل کا شکریہ، ناقابل جواب سوالوں کی خیر ہو۔ ایک مطلع ایک شعر لکھے ہیں کہ شگفتہ کوئی نہیں خستہ حال سارے ہیں، شگفتہ کوئی نہیں خستہ حال سارے ہیں، ملال کس کا کریں پر ملال سارے ہیں، شگفتہ کوئی نہیں خستہ حال سارے ہیں، ملال کس کا کریں پر ملال سارے ہیں۔ اور یہ اور بات کہ دشمن کی فتح ہو لیکن، یہ اور بات کہ دشمن کی فتح ہو لیکن، کما بدست سبھی تھامے ڈھال سارے۔ بنارس کی سرزمین کے ایک ایسے شاعر جو فی الحال سورت میں مقیم ہیں اور بنارس میں اور آج کی اس مجلس میں تشریف لائے ہیں۔ میری مراد محترم سلیم رضا بنارسی صاحب سے ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار کو پیش فرمائیں۔ معزز سامعین اکرام السلام علیکم۔ صدر محترم اور آپ تمامی کی حضرات کی اجازت سے استاد محترم شاعر پر ہیں دعائیں ساتھ میں ایک قطع ملاحظہ ہو کہ استاد ناراض نہ ہو جائے خبر سنتے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میرے استاد مولانا نصیر سراجی صاحب بھی ہیں، خالد جمال صاحب بھی ہیں، غفار امجد صاحب بھی ہیں۔ خیر، نہ غم گسار ہی کوئی نہ یار ملتا ہے، نہ غم گسار ہی کوئی نہ یار ملتا ہے، قدم قدم پہ علم کا غبار ملتا ہے، نہ غم گسار ہی کوئی نہ یار ملتا ہے، قدم قدم پہ علم کا غبار ملتا ہے، کوئی بھی رنج ہو یا اضطراب میرے خدا، کوئی بھی رنج ہو یا اضطراب میرے خدا، تجھے پکاروں تو دل کو قرار ملتا ہے، کوئی بھی رنج ہو یا اضطراب میرے خدا، تجھے پکاروں تو دل کو قرار ملتا ہے، تجھے پکاروں تو دل کو قرار ملتا ہے۔ اور ایک طرحی قطع ہے کہ مایوسیوں کو ساتھ میں کیوں کر ہی لے چلیں، مایوسیوں کو ساتھ میں کیوں کر ہی لے چلیں، آنکھوں میں اس کے کوچے کا منظر ہی لے چلیں، مایوسیوں کو ساتھ میں کیوں کر ہی لے چلیں، آنکھوں میں اس کے کوچے کا منظر ہی لے چلیں، ہمدرد شہر بھر میں ہمارا کوئی نہیں، ہمدرد شہر بھر میں ہمارا کوئی نہیں، اے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلیں۔ سے ہم سب کو محسوس کر رہے تھے اور شروع میں ابتدا میں انہوں نے مناجات کے بھی چند اشعار عنایت فرمائے۔ اسی میں ایک شعر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شعور ذات کی یہ ابتدا ہے، شعور ذات کی یہ ابتدا ہے کہ دل آہٹ تیری پانے لگا ہے، دریچے روح کے واہ ہو رہے ہیں، دریچے روح کے واہ ہو رہے ہیں، نظر کو تو نظر آنے لگا ہے۔ یہ میرے والد ماجد محترم خلیق الزماں صاحب کے اشعار تھے تو برملا یاد آ گئے۔
बहरहाल इस खूबसूरत सफ़र को मज़ीद कामयाबी के साथ उसके तसलसल को बाकी रखते हुए आइए एक ऐसे शायर को आवाज़ दी जाए जो पेशे से तो मुआलिज हैं, तबीब हैं, मगर जो ज़िंदगी के नशेब व फराज हैं और सर्द व गर्म हैं, ज़िंदगी के जो तजुर्बात व मुशाहिदात हैं, उन सब को अशार के कालब में ढालने का हुनर जानते हैं और उस हुनर के ज़रिए से अपनी दिल की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना जानते हैं। मैं एक ऐसे शायर मोहतरम डॉक्टर बख्तियार नवाज साहब से गुजारिश हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। अर्ज किया है कि फूल पत्ते शजर समर पत्थर, फूल पत्ते शजर समर पत्थर, हो गई क्या मेरी नजर पत्थर। फूल पत्ते शजर समर पत्थर, हो गई क्या मेरी नजर पत्थर। अच्छा मतलब अर्ज क्या है कि हो गई क्या मेरी नजर पत्थर, शीशाए दिल बिखर गया मेरा, शीशाए दिल बिखर गया मेरा, और खुश है फेंक कर पत्थर, और खुश है शीशाए दिल बिखर गया मेरा, और खुश है। साहब से गज़ल के अशार समात फरमा रहे थे। अब आइए आज की इस शेरी नशिस्त को मज़ीद रवा दवा करते हुए हमारी आज की इस बज़्म में एक अदबदोज़ शख्सियत और जो शेर व अदब का भी ज़ौक़ रखने वाली शख्सियत है मोहतरम अब्दुल समी साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि चंद अशार आप भी पेश फरमा दें। इनकार नहीं कर सकते, फेसबुक पर आप नहीं आएगा, दुनिया में क्या कोई लेके आया है। और मैं अशार से पहले अशार क्या कहूँ, बगौर समाज फरमा लें हाज़रीन किराम जी। अताओ इरशाद। वहम इदराक की खुल जाती हैं गिरहें उर्जा, इदराक की खुल जाती हैं गिरहें उर्जा, जब किसी अहले बसीरत से नजर मिलती है। एक शेर तरह से है, जो नबी के चश्म चिराग हैं, जो नबी के चश्म चिराग हैं, मेरी मंजिलों का सुराग है। अच्छा, जो नबी के चश्म चिराग है, मेरी मंजिलों का सुराग है, वही दीन हक की है मशाले, वही दीन हक की है मशाले, वही राह हक के चराग। एक शेर इस तरह से भाई जो आप लिख के आए हैं दुनिया में लिख के लेके जो आपके पास दामने सब्र मेरे हाथों में रहता है जब, दामने सब्र मेरे हाथों में रहता है जब, फूल बन जाते हैं हालात के पत्थर से। मेरा दामन गुलों ने चाक किया, मेरा दामन मेरा दामन गुलों ने चाक किया, वरना काटूं तो हौसला क्या था। मेरा दामन गुलों, अश्क आंखों की हिरासत से निकल आए। तो जिस तरीके का पैगाम दिया है जनाब अब्दुल समी साहब ने अपने अशार के ज़रिए से, अब मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे शायर जो यूँ तो मरीज़ों की नब्ज़ देखकर और उनके अमराज की तशख़ीस करते हैं और फिर उसका इलाज बताते हैं, और साथ ही साथ गज़ल गोई का एक अदबी ज़ौक़ भी रखते हैं और अपने गिरदो पेश के हालात व वाक़यात पर नज़र रखते हैं, और उस नज़र को फिर जब अपने अशार के क़ालब में ढालते हैं तो बनारस की सरज़मीन पर वो डॉक्टर अख्तर मसूद साहब के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। आप खानवादे हफ़ीज़ बनारसी के न सिर्फ रोशन चश्मो चराग हैं बल्कि मोहतरम हफ़ीज़ बनारसी साहब के साहबजादे भी हैं, और उनकी इल्मी विरासत को अपनी इस्तेदाद के बक़द्र आगे रवा दवा रखे हुए हैं। इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने अशार पेश फरमाएं। इजाज़त
ابھی 2-3 روز قبل ایک دعوت نامہ، کوئی جھومے ہے کوئی جھومے ہے کوئی گاتا ہے، کوئی جھومے ہے کوئی گاتا ہے، برتھ ڈے کی خوشی مناتا ہے، کوئی جھومے ہے کوئی گاتا ہے، برتھ ڈے کی خوشی مناتا ہے، برتھ ڈے کی خوشی مناتا ہے۔ تو جو چاہوں گا کہ گھٹ گیا عمر کا مزید ایک سال، گھٹ گیا عمر کا مزید ایک سال، کس کو اس کا خیال آتا ہے؟ گھٹ گیا عمر کا مزید ایک سال، کس کو اس کا خیال آتا ہے؟ شاعر کہتے ہیں کہ ہر گزرتا ہوا وقت عمر گھٹا دیتا ہے، ہر گزرتا ہوا وقت عمر گھٹا دیتا ہے، زندگی نے تو سدا موت کا رستہ دیکھا۔ تو اس خوبصورت بزم کو مزید بلندیوں پر لے جانے کے لیے اور اس خوبصورت تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے، رواں دواں رکھنے کے لیے، آج ہماری محفل میں ایک ایسے شاعر ہیں جنہیں ہم حبیب بنارسی صاحب کے نام سے جانتے ہیں اور خوبصورت اشعار کہتے ہیں، اور ان کی نعتوں کا ایک مجموعہ جو عقیدت کے ثمر کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے، اور قارئین علم و ادب اور شائقین اردو ادب کی محفلوں میں داد و تحسین حاصل کر چکا ہے۔ میں بہت ادب کے وفائیں لاکھ کر لو تم، وفائیں لاکھ کر لو تو رہے گا بے وفائی، کیا بات ہے، وفائیں لاکھ کر لو تو وفائیں لاکھ کر لو تم، رہے گا بے وفائی وہ، سمندر میں شکر ڈالو گے وہ میٹھا نہیں ہوگا۔ اچھا ہے، واہ 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 واہ، شکر ڈالو وفائیں لاکھ کر لو، واہ واہ، رہے گا بے وفائی، سمندر میں شکر ڈالو گے وہ میٹھا نہیں ہوگا۔ ایک شعر اور کیا کہا، حشر میں کوئی نہ کسی کا ہوگا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہا، حشر میں کوئی نہ کسی کا ہوگا، اچھا بتلاؤ کہ ہم لوگ کہاں رہتے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرات میں اپنے چشمے کو چشمہ لگا کے آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ یہ محفل دیکھیے پیچھے شاید لوگ کر گئے تو پہلے سنا دیتا ہوں۔ منافقوں سے دوستی ہوئی ہے کیا، منافقوں سے دوستی ہوئی ہے کیا، منافقوں سے دوستی ہوئی ہے کیا، نفاق ہی نفاق درمیان ہے، منافقوں سے دوستی ہوئی ہے کیا، نفاق ہی نفاق درمیان ہے، ہمارے بیچ اختلاف کچھ نہیں، ہمارے بیچ اختلاف کچھ نہیں، جو آڑے آئی آپ کی زبان ہے، جو آڑے آئی آپ کی زبان ہے، ہمارے بیچ اختلاف کچھ نہیں، ہمارے بیچ اختلاف کچھ نہیں، جو آڑے آئی آپ کی زبان ہے۔ کلی کلی میں بے کلی کیا ہوا، کلی کلی میں بے کلی یہ کیا ہوا، نگاہ شوق کو کہاں امان ہے، نگاہ شوق کو کہاں امان ہے، کلی کلی میں بے کلی یہ کیا ہوا، بجھی بجھی طبیعتیں تھکے بدن، بجھی بجھی طبیعتیں تھکے بدن، وہ دن گئے یہ عمر کا ڈھلان ہے، وہ دن گئے یہ عمر کا ڈھلان ہے، بجھی بجھی طبیعتیں تھکے بدن، وہ دن گئے یہ عمر کا ڈھلان ہے۔ امجد صاحب جو اس وقت بنگلور میں مقیم ہیں، بنارس کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں، تو آج انہی لوگوں کے اعزاز میں یہ نشست منعقد کی گئی ہے۔ حضرات، ہمارا جو علاقہ ہے مدن پورہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں، یہاں کی جو شعری فضا ہے میں سمجھتا ہوں شاید عباسی صاحب کی وجہ سے رواں دواں ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے، اور خالد جمال صاحب بھی پیش رکھتے ہیں۔ تو شاید عباسی صاحب کے لیے ایک شعر میں حاضر کر دوں کہ میں کچھ لمحے
اجالوں میں رہا ہوں، میں کچھ لمحے اجالوں میں رہا ہوں، محبت کرنے والوں میں کچھ لمحے اجالوں میں رہا ہوں، محبت کرنے والوں میں رہا ہوں. اور شعر مولانا کے لیے تھا، وہ چلے گئے کہ مجھے معصوم آنکھوں کی خبر ہے، مجھے معصوم آنکھوں کی خبر ہے، بہت دن میں غزالوں میں رہا ہوں، مجھے معصوم آنکھوں کی خبر ہے، بہت دن میں غزالوں میں رہا ہوں. چھوٹے مشاعرے تو بہت بنگلور میں ہو رہے ہیں، آس پاس کرناٹک میں. کبھی کبھی بڑے مشاعرے میں بھی شرکت ہوتی ہے، تو بڑے مشاعرے میں اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے یہاں ہیں جو ادب سے واقف ہیں اور معیاری کلام سننے کا موقع ملا ہے. شروع سے جو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بھی بہت، اتنے نوجوان کہیں نہیں مل رہے کہ مسافت کی گراں ہر ایک ساتھ ٹوٹ جاتی ہے، مسافت کی گراں ہر ایک ساتھ ٹوٹ جاتی ہے، تیری چشمے عنایت سے اذیت ٹوٹ جاتی ہے، تیری چشمے عنایت سے اذیت ٹوٹ جاتی ہے، تیری یادوں کی صورت سے نکلتی ہے عجب صورت، یادوں کی صورت سے نکلتی ہے عجب صورت، تیری یادوں کی صورت سے نکلتی ہے عجب صورت، اجالے یوں برستے ہیں کہ ظلمت ٹوٹ جاتی ہے، تیری یادوں کی صورت سے نکلتی ہے عجب صورت، اجالے یوں برستے ہیں کہ ظلمت ٹوٹ جاتی ہے، اجالے یوں برستے ہیں کہ ظلمت ٹوٹ جاتی ہے. ایک مطلب اکثر اور دیکھیں کہ مٹی ہونا پڑتا ہے، مٹی ہونا پڑتا ہے، تب لہجے میں سونا پڑتا ہے، مٹی ہونا پڑتا ہے، تب لہجے میں سونا پڑتا ہے. شیر کے باطن کو ملتی ہے زبان، شیر کے باطن کو مل شیر کے باطن کو ملتی ہے زبان، بس احساس سمونا پڑتا ہے، بس احساس سمونا پڑتا ہے، بس احساس سمونا پڑتا ہے. اور شعر دیکھیں کہ دنیا تیرے میلے میں ہم کو، دنیا تیرے میلے میں ہم کو سچ کا چشمہ کھونا پڑتا ہے، دنیا تیرے میلے میں ہم کو سچ کا چشمہ کھونا پڑتا ہے. داغ عنایت دھونے سے شیخ معظم کو کھل رہی ہے غزل، سنا ہے شیخ معظم کو کھل رہی ہے غزل، عزیزو آج ہے وحشی نہ کل رہی ہے غزل، عزیزو آج ہے وحشی نہ کل رہی ہے غزل، دکھی دلوں کے معموں کا حل رہی ہے غزل، دکھی دلوں کے معموں کا حل رہی ہے غزل. بہت سے لوگوں نے روڑے بچھائے راہوں، بہت سے لوگوں نے روڑے بچھائے راہوں میں، یہ معجزہ ہے کہ پھر بھی سنبھل رہی ہے غزل، یہ معجزہ ہے کہ پھر بھی سنبھل رہی ہے غزل، یہ معجزہ ہے کہ پھر بھی سنبھل رہی ہے غزل. اور تو اپنے گیسو رخسار کو سنبھال کے رکھ، تو اپنے گیسو رخسار کو سنبھال کے رکھ، تیرے دیار سے آگے نکل رہی ہے غزل، تو اپنے گیسو رخسار کو سنبھال کے رکھ، تیرے دیار سے آگے نکل رہی ہے غزل، تیرے دیار سے آگے نکل رہی ہے غزل. آخری شعر، میں جب بھی چاہوں بلا لوں گا اپنے کمرے میں، میں جب بھی چاہوں بلا لوں گا اپنے کمرے میں، میرے خیال کی چھت پر ٹہل رہی ہے غزل، میں جب بھی چاہوں فقط ردیف و قوافی سے کچھ نہیں ہوتا، فقط ردیف و قوافی سے کچھ نہیں ہوتا، جگر کے خون سے امجد کے پل رہی ہے غزل، جگر کے خون سے امجد کے پل رہی ہے غزل، ہمارے ساتھ کئی دن سے چل رہی ہے غزل، سنا ہے شیخ معظم. ادھر سے لو کی جھونکے آ رہے ہیں، سنا ہے اس طرف موسم ہرا ہے، اور
देखिए शेर के वाह 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 वाह। शब्द ढले अक्सर दरे दिल, खटखटाता कौन है। शब्द ढले शब्द ढले अक्सर दरे दिल, खटखटाता कौन है। मैंने जाना ही नहीं इस घर में रहता कौन है। शब्द ढले अक्सर दरे दिल, खटखटाता कौन है। मैंने जाना ही नहीं इस घर में रहता कौन है। और सब गिराने में लगे हैं जब तासुब की फसील, सब गिराने में लगे हैं जब तासुब की फसील। शहर में नफरत की दीवारें उठाता कौन है। सब गिराने में लगे हैं जब तासुब की फसील। शहर में नफरत की दीवारें उठाता कौन है। सब गिराने में लगे हैं जब तासुब की फसील। शहर में नफरत की दीवारें उठाता कौन है। और जब ताल्लुक की जमीन पर बर्फ सी जम जाए है, जब ताल्लुक की जमीन पर बर्फ सी जम जाए है, दोनों खुद में लाख सुलगे पर पिघलता कौन है। ताल्लुक की जमीन पर बर्फ सी जम जाए है, दोनों खुद में लाख सुलगे पर पिघलता कौन है। और दश्त की सब फाकियां शहरों में राइज हो गई। दश्त की सब फाकियां शहरों में राइज हो गई। खून बहाने के लिए जंगल को जाता कौन। राइज हो गई। क्या बात। दश्त की सब फाकियां शहरों में राइज हो गई। खून बहाने के लिए जंगल को जाता कौन है। और शेर आखिर के सब्ज़े आवारा हूँ मैं, सब्ज़े आवारा हूँ, मुझसे लो दर से सवार। सब्ज़े आवारा हूँ मैं, मुझसे लो दर से सवार। आंधियां सर लाख पटके यहाँ बिखरता कौन। सब्ज़े आवारा हूँ मैं, मुझसे लो दर से सवार। आंधियां सर लाख पटके यहाँ बिखरता कौन है। सब्ज़े आवारा हूँ मैं, मुझसे लो दर से सवार। आंधियां सर लाख पटके यहाँ बिखरता कौन है। और देखिए जिसको भी माइल वो असीरे जुल्फ है। देखिए जिसको भी माइल वो असीरे जुल्फ है। जिसमें करबे जात हो वो शेर सुनता कौन है। देखिए जिसको भी माइल वो असीरे जुल्फ है। जिसमें करबे जात हो वो शेर सुनता कौन है। शब्द ढले अक्सर दरे दिल खटखटाता कौन। हम दोस्त बन जाओ वफादारी मगर परखो मत। दोस्त बन जाओ दोस्त बन जाओ वफादारी मगर परखो मत। दर्द महसूस किए जाओ जुबान खोलो मत। दोस्त बन जाओ वफादारी मगर परखो मत। दर्द महसूस किए जाओ ज़बान खोलो मत। और ये शेर देखे कि दर्द महसूस किए जाओ ज़बान खोलो मत। दम निकल जाएगा आगे न निकल पाओगे। दम निकल जाएगा आगे न निकल पाओगे। साया फिर साया है साये की तरफ दौड़ो मत। निकल जाएगा आगे न निकल पाओगे। साया फिर साया है साये की तरफ दौड़ो मत। साया फिर साया है साये की तरफ दौड़ो मत। और शेर देखे कि इन थिरकते हुए आईनों को जुगनू जानो। इन थिरकते हुए आईनों को जुगनू जानो। दूर से देख लो खुश हो लो इन्हें छेड़ो मत। थिरकते हुए आईनों को जुगनू जानो। इन थिरकते हुए आईनों को जुगनू जानो। दूर से देख लो खुश हो लो इन्हें छेड़ो मत। इन थिरकते हुए आईनों को जुगनू जानो। दूर से देख लो खुश हो लो इन्हें छेड़ो मत। शेर आखिर जिंदगी किसकी हुई है जो तुम्हारी होगी। मौलाना कासिम साहब, जिंदगी किसकी हुई है जो तुम्हारी होगी। सांसों की बाजी में है मात इसे खेलो मत। जिंदगी किसकी हुई है जो तुम्हारी होगी। सांसों की बाजी में है मात इसे खेलो मत। और बर्दाश्त फरमाने के जिस तरफ पेड़ में फल आने लगे हो माइल। जिस तरफ पेड़ में फल आने लगे हो माइल उस तरफ घर के दरीचे को कभी खोलो मत। जिस तरफ पेड़ में फल आने लगे हो माइल
क्या घर के दरीचे को कभी क्या कहने घर के दरीचे को कभी बहुत दोस्त बन जाओ वफादारी मगर मत। और मोहतरम शाद अब्बासी साहब की शफ़क़त है कि वो हमेशा नवाजते रहते अपनी शफ़क़तों से, और मैं सिर्फ उनकी मोहब्बत और शफ़क़त में मैं गांव से चला आया भागा। अल्लाह जज़ाए खैर दे और सलामत रखे। एक मतला है कि मैं ऐसे ही हूँ, सोया सोया लगता हूँ लेकिन जागता रहता है। मतला है कि ख्वाब आँखों में सिकंदर का लिए फिरते, ख्वाब आँखों में सिकंदर का लिए फिरते, दिल मगर सीने में तीतर का लिए, ख्वाब आँखों में सिकंदर का लिए, ख्वाब आँखों में सिकंदर का लिए, सिकंदर का लिए फिरते, दिल मगर सीने में तीतर का लिए फिर दो। जो तीतर मारते हैं शिकार करते हैं, उनको तजर्बा होगा, इतना डरपोक जरा सी आट हुई और अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह उड़कर चला जाए। ख्वाब आँखों में सिकंदर का लिए, दिल मगर सीने में तीतर का लिए, बादलों इतना भी इतराना नहीं है अच्छा, बादलों इतना भी इतराना नहीं है अच्छा, तुम भी एहसान समुंदर का लिए। बादलों इतना भी इतराना नहीं है, तुम भी एहसान समुंदर का लिए। आपका नाम जो लिया मैंने, दिल का कागज भिगो लिया, आपका नाम जो लिया मैंने, दिल का कागज भिगो लिया मैंने, हीरे मोती से भर लिया दामन, हीरे मोती से भर लिया दामन, आज जी भर के रो लिया, हीरे मोती से भर लिया दामन, आज जी भर के रो लिया मैंने, और उसकी यादों के नर्म पौधों को, उसकी यादों के नर्म पौधों को दिल की मिट्टी में बो लिया मैं, उसकी यादों के नर्म पौधों को दिल की मिट्टी में बो लिया मैंने। अब मेरी जागने की बारी है, अब मेरी जागने की बारी है, इतना सोना था मेरी जागने और अशार के क़लब में ढाला। मैं तमाम मुंतज़मीन की जानिब से और तमाम शुअराए किराम की जानिब से, अहलियान बनारस की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अभी जैसा शाह साहब फरमा रहे थे कि मैं जिस तरीके के अशार और जितने मेयारी कलाम हम सब ने समाअत किए हैं, उसके बाद मैं काँप रहा हूँ। तो मुझे दाग देलवी का एक शेर याद आता है कि दफ़ातन तर्के ताल्लुक़ में भी रुसवाई है, दफ़ातन तर्के ताल्लुक़ में भी रुसवाई है, उलझे दामन को छुड़ाते नहीं झटका देकर। आप इस उलझे हुए दामन को आहिस्ता से छुड़ाएं और चंद अशार, चाहे वो गज़ल की शक्ल में हो चाहे नज़्म की शक्ल में हो। नहीं, वाकई गज़लें तो ऐसी में आनी आई कि इसके सामने नज़्म क्या चीज़ है। एक नज़्म है 1857, हमको फिर से जाना होगा 1857 में, हमको फिर से जाना होगा 1857 में, हमको फिर से जाना होगा 1857 में। गरज रही थी अंग्रेज़ों की खूनी तोपें, उगल रही थी हलाकतें उनकी बंदूकें, लटक रहे थे पैरों से फांसी के फंदे, आज़ादी के ये मतवाले भारत माँ के लाल जियाले, लटक रहे थे पेड़ों से फांसी के फंदे, आज़ादी के ये मतवाले भारत माँ के लाल जियाले, मौत को जैसे गले लगाए सीना ताने, आगे ही बढ़ते जाते थे जुल्म की खूनी चट्टाने, पाँव के छाले रोक न पाए बढ़ते कदमों को, याद करो उन लम्हों को, पाँव के छाले रोक न पाए बढ़ते कदमों को, याद करो उन लम्हों को,
हमको फिर से जाना होगा 1857। उस दिन धर्म और मजहब का आपस में कोई भेद न था। उस दिन धर्म और मजहब का आपस में कोई भेद न था। उस दिन तलवारें उठती थी नारी के सम्मान की खातिर। उस दिन तलवारें उठती थी गीता और कुरान की खातिर। उस दिन तलवारें उठती थी भारत माँ की आन की खातिर। उस दिन तलवारें उठती थी नारी के सम्मान की खातिर। उस दिन तलवारें उठती थी गीता और कुरान की खातिर। उस दिन तलवारें उठती थी भारत माँ की आन की खातिर। उस दिन तलवारें उठती थी वो बस हिंदुस्तान की खातिर। हमको फिर से जाना होगा 1857। हमने जमहूरी शान की खातिर दारुल रसन को चूमा था। हमने जमहूरी शान की खातिर दारुल रसन को चूमा था। इस मिट्टी के इलाज की खातिर इसके बदन को चूमा था। झांक के जालिम आंखों में खंजर के दहन को चूमा था। अपने सर को उनकी उम्मीद देकर अपने वतन को चूमा था। भगत सिंह, तानिया टोपे, अशफाकुल्लाह खान को याद करो। झांसी की रानी मंगल पांडे, बेगम हजरत महल को याद करो। सर की उस दिन क्या कीमत थी। भगत सिंह, तानिया टोपे, अशफाकुल्लाह खान को याद करो। झांसी की रानी मंगल पांडे, बेगम हजरत महल को याद करो। सर की उस दिन क्या कीमत थी। शाह जफर के शहजादों का सर याद करो। जलियांवाला बाग में किसका खून बहा था याद करो। आपस में जो प्यार मोहब्बत हम सब में था याद करो। हमको फिर से जाना होगा 1857 में। कोई सूबा कोई भाषा सबका एक ही नारा था। कोई सूबा कोई भाषा सबका एक ही नारा था। इनकलाब जिंदाबाद। याद करो उस दिन का नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हमको फिर से जाना होगा। ज़मीं को रखते सफ़र कर हुदूद जां से निकल। ये हौसलों का सफ़र है सऊबतों की डगर। तू साथ चल नहीं सकता तो कारवां से निकल। इस तरीके की मोतबर मजलिस में आज शहर की एक ऐसी अहम शख्सियत, मोतबर शख्सियत जो हम सब के मखदूम मोहतरम भी हैं, और चाहे वो तसनीफ़ का मैदान हो, तहक़ीक़ का मैदान हो, मताले का मैदान हो, शायरी का मैदान हो, खिताबत का मैदान हो, हर जगह अदीमुल नसीर अहमद साहब नसीर सिराजी भी कह सकते हैं। बहुत बचपन में मैंने एक वो हमारे ही नक्श पा निकले एक वो मिसरा मिला था, तो उसमें आपने एक जो शेर कहा तो मुझे याद है कि तलबा सूए मदरसा निकले, तलबा सूए मदरसा निकले पर बिछाए मलाइका निकले। तो वो अशार इस मेयार के साथ जो कह पाते हैं वो हम सब के हज़रत मौलाना नसीर सिराजी साहब हैं। आपकी कई किताबें मंजर आम पर आई हैं। आपकी एक किताब, एक वो हम्द का मजमुआ या रब्बना, जो आपके तमाम अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, उसमें या रब्बना एक वो सबसे पहली किताब शायद आपकी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह का जो आपका हम्द का एक मजमुआ था, वो आपकी तुमने देखी भी नहीं। बहुत सारी, अरे वो हैं, उसके मुसव्वदात हैं मौजूद, मगर हाँ, अब देखेंगे। तो ये हम सब की खुशनसीबी है, हम सब की सआदतमंदी है कि उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से हम सब यहाँ मौजूद हों, और उस बज़्म की सदारत हज़रत मौलाना नसीर अहमद साहब नसीर सिराजी साहब फरमा रहे हों। तो जाहिर सी बात है कि हम सब ये चाहेंगे, हमारी गुजारिश होगी, और हम सब बहुत अदब के साथ मुल्तमिस हैं कि बराए करम हज़रत चंद अशार गज़ल के या नात के या जो भी, हाँ, जो भी, हाँ, पाबंद नहीं कर रहे, अपने कलाम से महसूस फरमाएं। चंद खुशबू भरी यादों को संभाले हुए है। चंद खुशबू भरी यादों को संभाले हुए है। दिल मगन बहने की तदबीर निकाले हुए है। चंद खुशबू भरी यादों को संभाले हुए है। दिल मगन बहने की तदबीर निकाले हुए। अच्छा, इसी की फरमाइश की थी आपसे। मगन रहने की तदबीर निकाले हुए है। देखना कल वही शोले की तरह भड़केगा। देखना कल वही शोले की तरह भड़केगा। जो शगुफा वो सरे बद में उछाले हुए है। जो शगुफा वो सरे बद में उछाले हुए है। और वो जो एक किस्म है महताब की सूरत सरे जां। वो जो एक किस्म है महताब की सूरत सरे जां। हाँ, वही इसमें मेरी जिस्त उजाले हुए है। वो जो किस्म है महताब की सूरत सरे जां। हाँ, वही इसमें मेरी जिस्त उजाले हुए है। और आलमे खल्क में
छोटा सा है इंसान का वजूद। आलमे खल्क में छोटा सा है इंसान का वजूद, फिर भी हंगामा कौनैन संभाले। आलमे खल्क में छोटा सा है इंसान का वजूद, फिर भी हंगामा कौनैन संभाले हुए है। आलमे खल्क में छोटा सा है इंसान का वजूद, फिर भी हंगामा कौनैन संभाले हुए है। एक दीवाना है इजहारे हकीकत पे मुसीर, एक दीवाना है इजहारे हकीकत पे मुसीर, एक कातिल है जो शमशीर निकाले हुए है। एक दीवाना है इजहारे हकीकत पे मुसीर, एक कातिल है जो शमशीर निकाले हुए है। और इश्क वो जर्रा है तारों पे जो डाले है कमंद, इश्क वो जर्रा है तारों पे जो डाले है कमंद, ये वो कतरा है जो तूफान उछाले हुए है, जो तूफान उछाले हुए है। और मेरे अबुवैन करीमैन का फैजान दुआ, मेरे अबुवैन करीमैन का फैजान दुआ, मुझसे आफात व बलियात को टाले हुए है। और ऐश करते हुए बेटे को कहाँ इसकी खबर, ऐश करते हुए बेटे को कहाँ इसकी खबर, बाप जो आतिश गम सीने में पाले हुए है। ऐश करते हुए बेटे को कहाँ इसकी खबर, बाप जो आतिश गम सीने में पाले हुए है। और दिल के हर दर्द को एक शायर खुशबाश नसीर, दिल के हर दर्द को एक शायर खुशबाश नसीर किस हुनरमंदी से अशार में ढाले, किस हुनरमंदी से अशार। बहुत पहले मैंने कहा बहुत बीमार हो गया था, और उस वक्त मेरी सबसे बड़ी बच्ची गालिबन 7-8 साल की थी। अच्छा। और जैसे कहा जाए कि जिंदगी से मायूस हो चुका था। उस वक्त मैंने ये कहा था, मेरे खुदा मुझे दुनिया से मत, मेरे खुदा अभी दुनिया से मत उठा मुझको, मेरे खुदा अभी दुनिया से मत उठा मुझको, कि मेरे लाल अभी आयन गैन पढ़ते हैं। मेरे लिए वो चटाई है जन्नती कालीन, मेरे लिए वो चटाई है जन्नती कालीन, नमाज जिस पे मेरे वालिदैन पढ़ते हैं। मेरे लिए वो चटाई है जन्नती कालीन।